Hi, good morning. My name is Rashid Khan. I'm the Marketing Communications Manager at ACCA, and I welcome you all to the part 5 of Journey to Success, a life-changing series of webinars we are hosting under our initiative of Gear Up. And the sessions are delivered by Asad Malik, and we try to focus on key professional development areas. And on the screen, you can see two very motivational figures. One is Muhammad Ali and the other is Asad Malik. He has already delivered I think 4 very inspiring sessions for us this Ramadan. And as we draw closer to the end of the season, fasting season, and we are also about to complete this series. So this is the second last in the series. And in an email which was circulated earlier this morning, you had links to all the previous sessions. So just in case you missed those sessions, those very important sessions, you can always come back and listen to the recordings. This session is also is being recorded, so you'll be able to watch the recording later on. And then we'll have one more session which is scheduled after this. So without further ado, I'll just do a quick sound check and then I'll hand it over to Asad. So if you can please let us know in the comment section if you're able to hear us all right. Type yes if yes, you can hear us. Great. All positive responses are way. Asad, so over to you. Thank you very much, Rashid. A very warm welcome to all the dear students and affiliates in our very prestigious ACCA fraternity. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और today I am here with you with very interesting topic, and that is facing your failures, the essence of success. अब तक हमने जितने सेशंस में जिन सब्जेक्ट्स पर बात की है, that is altogether different in terms of the appetite, taste, and it's more to do with your inspirational side, with your actually what you how you can best inspire yourself and how you can best put yourself all together and face the challenges in your career, in your life, in your personal side, and putting all together your personal and professional side and bringing the best out from you. हम अपनी लाइफ में हमेशा जो है कामयाबियों की बात करते हैं और हम उसके बारे में हमेशा बड़ा प्राइड लेते हैं उन सारी कामयाबियों के बारे में, या वी ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल द स्ट्रेंथ्स वी हैव, ऑल द गुड डेज we have spent so far. So we even want to talk about in the future or want to see always the good days. लेकिन कभी भी हमने we have not comfortably talked about our dark days. हम कभी भी अपने फेलियर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, उनको हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं, और ना हम चाहते हैं कि वो आने वाले हमारे टाइम के अंदर हमें किसी किस्म के किसी भी फेलियर्स का सामना करना पड़े. और इवन हम वी ऑल्सो आस्क द सेम फ्रॉम द क्रिएटर एज वेल, दैट कि वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां क्रिएट करें. we don't want to sacrifice, we don't want to put effort to our muscles, और हम अपने आप को आउट ऑफ द वे जाकर थकाना नहीं चाहते. और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि अगर यहाँ पर फेलियर्स हैं तो हम कहीं यहाँ साइड से स्किप करके अल्लाह हमें इतना ब्लेस करे कि हम उस ब्लेसिंग्स के तहत जो है हम उसको समहाउ किसी तरह से स्किप करके आगे चल सकें. लेकिन इन रियलिटी, even in the personal side, if you want to be successful, and even in the professional side if you want to be successful, so there is no other way. You have always to go through the lane that is called through the street that is called itself called failures. आपको उस स्ट्रीट से गुजरना है जिसका नाम फेलियर है. Without passing through that street you are not going to be successful. Maybe if you are lucky enough, अगर आप इतने किस्मत वाले हैं
कि आपको somehow आपके कुछ ऐसी खास दुआएं हैं कि आप कुछ चीजें स्किप कर जाते हैं और you get to be there without having any hurdles or challenges or pressures or panic situations around you. But still, there will be a day, maybe after a month, after a week, after a year, after 5 years, where you will realize that the importance of failure जो है वो कितना जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर, उसकी अहमियत कितना important है उसका होना. So we'll talk about it. So on the screen you can see one of my favorite sports personality, Muhammad Ali. And I believe you go on the YouTube, you go on the digital space or anywhere, so you will always find the best and special things और ऐसी खास चीजें जो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को मोटिवेट करती है और किस तरह से वो अपनी लाइफ के अंदर टफ सिचुएशंस में से गुजरा और उसने किस तरह से टफनेस को हैंडल किया, उन तमाम फेलियर्स को डील किया और बजाय इसके कि वो उससे शाय अवे करता, he actually handled those all और and he became very world known champion जिसको आज भी हिस्ट्री उतने पैशनेट तरीके से याद रखती है. आई थिंक देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स जो इनके बाद भी आए, बड़े बड़े नाम, लेकिन स्टिल मोहम्मद अली ने एक ऑल टुगेदर एक कंप्लीटली हिस्ट्री में अपना नाम एक बड़े प्रोमिनेंट अंदाज में रखा. It was not only about his competition, it was about his talks, his body language, even in the eye contact, his humor, everything. Even we have discussed so far in the last sections, we talked about the opportunities, the vision, the personality side, and overall putting them all together is actually prepared for the day when you are out to then face your failures. Otherwise, there is no value into your vision, your mission, your strategies alone, and your opportunity side, and all we have discussed so far in the series of sessions, if there are not going to be failures in your life. So today, facing your failures, the essence of success. So let's further talk about this subject. Okay, if you see the picture, और पिक्चर में अगर आप देखें, so बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन को प्रेजेंट करता है जब हम इवन स्टूडेंट लाइफ में, मे बी कॉलेज या स्कूल में थोड़ा डिफरेंट होता है, और जैसे जैसे आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का एहसास बढ़ना शुरू हो जाता है कि इवन आपके इर्द गिर्द के आपके जो दोस्त हैं, आपके जो क्लास फेलोज हैं, वन डे दे आर गोइंग टू टर्न इनटू माय कॉलीग्स. सो उनमें से बहुत से लोग मे भी मेरे कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो, कंपटीशन फर्म में हो, सो हमारा आपस में मे बी कंपटीशन हो, हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हो. सो वी स्टार्ट विद द टाइम, we start seeing ourselves, even our friends, our colleagues, from different industries, organizations, and even within same organization and even within same teams, हम अपने इर्द गिर्द की सब चीजों को एक लफ्ज में बंद करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंपटीशन. और ये इतना फियर्स होता जाता है, हमारी सेंसेस के ऊपर ऐसे प्रिवेल करता जाता है वक्त के साथ साथ कि ये ऐसे फील होता है कि हमारे पूरे थॉट प्रोसेस पे, सिक्स सेंसेस पे, बॉडी लैंग्वेज पर अपना एक इम्पैक्ट डोमिनेट कर रहा है. और वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट competition. Exams, we are into competition. There is a nationwide position, there is a worldwide position. He has got less marks, he has got average marks, he is very passionate, he is a backbencher. So all of those things, even when you enter into the premises of your college or education partner from where you are studying, so you start hearing such things. Or the day, if we talk about the affiliates, the day affiliates joins the as internee or trainee, तो वो एक competition वाला factor they start feeling from the first day. और बिल्कुल आपको खास तौर पे जब आप नई नई जॉब स्टार्ट करते हैं और आपके शुरू के कुछ दिन होते हैं, तो बिल्कुल आपको ऐसा भी महसूस होता है जैसे when you were the youngest one और आपके पेरेंट्स आपको स्कूल लेकर जा रहे थे और वो आपका स्कूल का पहला दिन था. सो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है, इवन फ्रॉम द किंडरगार्टन. और उसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फियर्स
और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, काफी सारी चीजें उसके इर्द गिर्द, प्रेशर सिचुएशंस, पॉलिटिकल सिनेरियोज, पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, इस तरह की तमाम चीजें जो हैं, they start taking birth within your mind, with your body language, thought process, and you completely feel heartless, demotivated. It feels like if you have applied for the interview, और आपको शुरू में ऐसा लगता है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, तो आपको एक ऐसी अंदर से एक गट फीलिंग या एक गिल्ट फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि आपको लगता है कि मे बी यू विल नेवर हियर बैक फ्रॉम द एम्प्लॉयर। आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप एक ऊंचाई से, अक्सर अगर आपने देखा हो, अक्सर ख्वाब भी ऐसे आते हैं या जब आप किसी टेंशन में होते हैं कि आप बिल्कुल ऊंचाई से किसी ने आपको गिरा दिया। सो वो जो एक शिकस्त की फीलिंग है कि आप गिर रहे हैं, आप एक फॉल, आपका दिल डूब रहा है, नॉट गेटिंग द सैलरी यू वांट, आप जो जिस सैलरी से एस्पिरेशन रखते हैं स्टार्ट करना, वो सैलरी का स्टार्ट नहीं मिल रहा है, या स्टार्ट मिल गया है तो आप फर्दर जंप के लिए अफिलिएट्स, मिडिल मैनेजमेंट की जर्नी की तरफ जाना चाह रहे हैं और उसके अंदर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। You feel like you are left alone. Where are the people who always used to talk about that they are always there for you? They are not then. So ये सारी feelings आने स्टार्ट हो जाती हैं। You wouldn't be able to do the job. For example, maybe the skill set, maybe the job description इतना comprehensive, इसमें तो presentations भी हैं, इसमें तो clients को जाकर मिलना भी होगा, ये तो बड़ा challenging हो जाएगा। इस करंट सिचुएशन के अंदर पेंडेमिक है, क्या हम जॉब्स लूज तो नहीं कर देंगे? घर बैठ कर क्या हम उस तरह से डिलीवर तो नहीं कर भी पाएंगे या नहीं? तो ये सारे पॉइंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अनश्योर हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ। मैं एक 6 लोगों की टीम में काम करता हूँ, उसमें मैं बेस्ट से बेस्ट अपने आप को कैसे पोजीशन करूं, मैं अपनी बेस्ट साइड को कैसे रिफ्लेक्ट करूं, अच्छी परफॉर्मेंस को कैसे ऊपर लेकर आऊं, हाउ आई पोजीशन माई सेल्फ। स्ट्रेस, सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस और स्ट्रेस, एंजाइटी, पेन, you actually start feeling that pain. You feel like you're wounded, किसी ने आपको इंजर्ड किया है, किसी ने आपको पंच किया है, ये सारी हार्श फैक्टर्स आपको ऐसे लगता है कि आपको चारों तरफ से जो है हिट कर रहे हैं। चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज। Every year there are a number of changes coming. For example, even if we talk about this current COVID-19 pandemic situation, so the world is moving on the digital side. So a big change is coming. So people must be nervous. There will be a lot of anxiety. So what the world has now left for us? Restlessness, bechani, sleepless nights. You are always thinking about your future, about how you are going to be the fine bread earner for your family. Being rejected from the interviews, maybe no, from your senior management, not seeing you in their succession properly. So asking for help, now you feel like you are helpless. You want to ask for help, but you are confused where to start from, what to do. So ये सारी वो realities हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं और हमेशा इनको अपनी पर्सनालिटी के साथ रखते हैं और इनको हम कभी भी एड्रेस नहीं करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन वी आर हियर टू टॉक अबाउट द सैड पर्सन इन द स्लाइड and see how we can make his chin up again, rise with the confidence and smiling face, and he can do well in life. So let's see. Okay, let's start aspiring the same person standing at the peak, standing at the peak with all the great smile, positive body language,
and wholeheartedly embracing success. So what actually success is? It's an illusion. It's an iceberg illusion. जो दिखता है, जो आपको दिख रहा है, असल में वो है नहीं. सो सक्सेस बिल्कुल ऐसे है. मे बी आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं और आप कहते हैं कि यार ही इज वेरी सक्सेसफुल, ही हैज बीन वेरी लकी, इसकी बड़ी लक है, इसको लक ने बड़ा साथ दिया है. ही इज वेरी टॉल हाइटेड, पर्सनैलिटी वाइज अच्छा है, सो ही ऑलवेज गेट्स द चांस. इसको और ये इसकी शुरू से लक, ये बड़ा ब्लेस्ड है. हम हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा, इसके पास कितनी जबरदस्त गाड़ी है, इसके पास कितना जबरदस्त घर है, इसके फाइनेंसेस कितने स्ट्रांग हैं, ये कितनी जबरदस्त चैरिटी करता है, क्या पर्सनालिटी है. बट हम इससे ज्यादा नहीं देख पा रहे होते कि इन सब के पीछे जो वो डार्क डेज हैं, जिससे वो गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है, वो सारी एफर्ट्स जो वो करके यहाँ तक पहुंचा है, वो हमारे सामने नहीं होती हैं. और हम बिल्कुल, इवन जब इंटरव्यूज में भी बुलाया जाता है, या इवन दे टॉक अबाउट, सच पीपल टॉक अबाउट देयर फेलियर्स, देयर स्ट्रगलिंग डेज, बट हमें एकदम से जो अट्रैक्टिव, charismatic, on the picture, the colors, all the charm, all the stardom, all the personality good factors, real good factors, हम सारे सिर्फ उनको काउंट कर रहे होते हैं, और हम सब वो निग्लेक्ट कर देते हैं जो बेसिकली इस आइसबर्ग के नीचे का हिस्सा है, जो बिल्कुल नीचे ओशन की तह तक गया होता है और स्ट्रांगली रूटेड होता है. जिस तरह से आप एक दरख्त देखते हैं जो कि हम कहते हैं कि बहुत पुराना दरख्त है, उसकी रूट्स बड़ी इंटैक्टेड होती हैं नीचे जमीन के साथ, और आप जितनी तूफान आए, बारिश आए, वो उसको वहां से हिला नहीं सकते. और वो क्या वजूहात होती हैं? पीपल, सो एक्चुअली पीपल आर सीइंग सक्सेस, सो लेट्स सी दोस फैक्टर्स इन द डार्क डेज. वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू वो तमाम नोन पर्सनालिटीज जो अपनी लाइफ में कामयाब हुई हैं, वो तमाम सक्सेस स्टोरीज जिनको उन उसी सक्सेस स्टोरी के डार्क डेज की एपिसोड से भी गुजरना पड़ता है. सो फेलियर, sacrifice, persistence, disappointments, dedication, training, hard work, recruiting, good habits, trial, error, mistakes, गलतियां, ये तमाम चीजें वहां पर होती हैं, उसी की पर्सनालिटी में होती हैं. वो भी गलतियां कर कर आया होता है, उसने भी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी होती हैं. सो this is very important for us actually to see beyond the wall as well, to see beyond the जो जाहिरी तस्वीर आपके सामने है, उसके सामने अलावा हम थोड़ा बातिन देखने की भी कोशिश करें, जिस बातिन के अंदर वो सारी एफर्ट्स, वो सारे सैड डेज, वो एफर्ट स्ट्रगलिंग डेज जो हैं छुपे हुए हैं. और क्या होता है, अक्सर अक्सर ये होता है कि अगर हम इसके बारे में बात भी करना चाहते हैं, या हम इसके बारे में ग्रेसफुली फेलियर्स के बारे में हम बात भी करना चाहते हैं, अगर शेयर भी करना चाहते हैं, तो एक चीज हमें रोकती है स्पेशली, और वो है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है. एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, राइट क्रिटिसिज्म, वो बहुत अच्छा होता है. अगर वो है तो बहुत बेहतरीन है. लेकिन अगर रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, अगर क्रिटिसिज्म अनफेयर है, जो एक के सामने वाले के कॉन्फिडेंस को, सामने वाले की मोटिवेशन को तोड़ देगा, तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप खामोश रहें. लेकिन पीपल डू दिस. सो होता क्या है जब आप अनफेयर क्रिटिसिज्म करते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सब करते हैं, और हम सब करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचे बगैर. इवन हम क्लास में करते हैं, जो थोड़ा सा वीक स्टूडेंट होता है उसके साथ करते हैं. जैसे ही हम ऑडिट फर्म्स में जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, इंटर्नशिप्स में जाते हैं, कहीं पर भी इंडस्ट्री में जाते हैं, वहां पर भी हम करते हैं. कुछ केसेस में सीनियर्स की तरफ से होता है, और इवन काउंटर पार्ट्स करते हैं. इससे होता क्या है? सी द पिक्चर. आप उस शख्स की पूरी पर्सनालिटी को आप दबोच देते हैं.
You pressed all that confidence और उसको बिल्कुल shatter कर देते हैं आप, और जिसकी वजह से वो जो right change है towards success, वो positivity जिसकी वो तलाश में होते हैं, that becomes even very harder for people actually to bring that change in their personalities. और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और इस पैनिक सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं फिर? वी स्टॉप टॉकिंग अबाउट आवर फेलियर्स। हम उनके बारे में बात क्या, हम उनके बारे में शुरुआत तक नहीं बिल्ड करते हैं। वी इवन डू नॉट गो टुवर्ड्स द बिगिनिंग स्टेप्स to talk about, even to discuss a small for few seconds about our failures. So what happens? There is a panic situation. You are not discussing it with anyone. You are even not ready to look at your failure with one good second eye contact, and that leads to you start skipping your failures. आप कहते हैं there must be a way कि हम उन 4 स्टेयर स्टेप्स को स्किप करके 5वें स्टेयर स्टेप पे पैर रखें एंड वी जंप फ्रॉम इट, और हम इसको किसी तरह पास कर जाएं, दुआएं करते हैं इसके लिए हम, और हम वो सारी चीजें करते हैं कि समहाउ किसी तरीके से हम ये हार्ड पार्ट जो है, हार्ड ड्रिलिंग पार्ट जो है, इसको गुजार लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉज। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपने इस एक एक सीढ़ी के ऊपर पैर रखना है, और उनको आपने पूरा कंप्लीटली एक्सपीरियंस करके, फिजिकली एंड मेंटली, विद ऑल योर थॉट प्रोसेस, हर अपनी पूरी अपनी शख्सियत के ऊपर महसूस करके उन तमाम फेलियर्स को फिर आगे आपने जाना है। और जब आप स्किप करते हैं, आप नहीं सुनते हैं, तो होता क्या है? इवेंचुअली वी फॉल। आप मुंह के बल गिर जाते हैं। आप ये कोशिश करके देख लें, जब आप 5 सीढ़ियां 6 सीढ़ियां ओवर स्टेप करें तो 10 में से 7 बार चांसेस हैं कि आप गिर जाएंगे, राइट? और होता क्या है? फिर आप गिर जाते हैं, अगेन आपका कॉन्फिडेंस, आप मजीद पस्ती वाली साइड पर चले जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ एक्चुअली वी आर going to face our failures? We really need to put ourselves into a warrior situation. There is a slide in front of you taken from the movie 300, where 300 Spartans had a battle with more than thousands of soldiers. And even in our history, in our religion's history, there are a number of battles, or even in the history there are many battles from even not even from our religion, across the cultures. दुनिया में से कहीं भी आप एग्जाम्पल उठाकर देख लें, very less people maybe, but they have fought with the courage, look into the eyes and decided to fight and faced the enemy, and they have gone through all those fights and hard times, or they have won the battles. So what is important कि हम जो वो तूफान है, वो जो बारिश है, अपने तमाम उस वेल इक्विप्ड आर्मर के साथ जो है अपने फेलियर्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाएं। और हमारे जो डर है हमारे अंदर, फेयर्स हैं, फेयर ऑफ लूजिंग आवर जॉब, फिर अगर मैंने ये बात की तो मे बी क्या इंप्रेशन आएगा? एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, इवन व्हेन वी आर इन स्कूल। यूजुअली इफ यू नो, टीचर्स रियली अप्रिशिएट जो बच्चे सवाल करते हैं, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ये सोचते रहते हैं कि अगर हमने सवाल किया तो मेरा मजाक उड़ेगा। वही अनफेयर क्रिटिसिज्म वाले लोग फौरन से एक्टिव हो जाते हैं और करते भी हैं। लेकिन इसी फेयर को आपने तोड़ना है, और इसका बेस्ट तरीका क्या है? That you start living with your failures. I'll share a very interesting example from my life. When I was in school, so I used to be study in Murray,
कॉन्वेंट स्कूल। एंड होता ये था कि हम अक्सर रात को ट्रैवल करते थे इस्लामाबाद से मरी की तरफ। सो उन दिनों में अभी का जो जंगल है वो मजीद घना जंगल होता था, और देयर यूज्ड टू बी अ टर्न जिस पर जब हमारी गाड़ी टर्न करती थी तो सामने से बड़ा एक जॉइंट सा ह्यूज साया बनता था एक किसी चीज का फ्रॉम द जंगल साइड। और हमने नंबर ऑफ डेज उस जगह को बड़ा फ्यूरियसली क्रॉस किया है, और एक दो बार हमारा एक्सीडेंट होने लगा कि मे बी यहाँ पर किसी चीज का साया है। सो उस फियर ने हमें हमेशा एक बड़े डिफिकल्ट सी सिचुएशन में डाला, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। मैं तो छोटा था, इवन विद माय फादर एंड ऑल द एल्डर्स, दे वर आल्सो। वन डे माय फादर डिसाइडेड दैट लेट्स सी व्हाट्स देयर। सो ही डिसाइडेड, वो उतरे, ही पार्क द कार, गए तो वहां देखा कि एक बड़ा सा ऊंट जो है वो एक ऐसी जगह पर दरख्त के साथ बंधा हुआ है कि जब वो एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है साइड जो टर्न्स पे मिरर्स लगे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक शैडो क्रिएट होता है। बट ही डिसाइडेड टू गो एंड फेस दैट फियर, और फिर उसके बाद एवरीथिंग वेंट नॉर्मल फॉर अस। सो fears जो है, they are completely like illusions. They are just there to break your confidence. But if you go and make that eye contact with confidence and the belief system, then you'll see it was nothing there. It was all illusion. So start overcoming your fears. The key in all this situation is to, if you see the picture, he is somewhere on the volcanic mountain, and he is that much passionate, dedicated to the job, focused to the job, fearless to the job, that even if you see the उसके अगर आप शूज देखें, शूज भी आग पकड़ गए हैं, and the tripod भी आग से जल रहा है, right? But he is there all to achieve what he, जिसके लिए वो वहां गया है. So the key is to capture your failures. आप अपने failures को capture कर लें. Don't let them go away. Go and face them. They will be there otherwise. ऐसा नहीं होगा कि वो चले जाएंगे कहीं, नहीं, they will be there. वो volcanic जिस दिन होगा और वो आएगा. So that is the best situation. You go there and deal with it and take that picture you want to. After this, the second step, what you should be doing is make peace with your failure. It's very important. Start cherishing your failures. Start loving the factors about your failure. Start putting the appetite of romance with your failure. For example, whenever the cricket is on the TV, पाकिस्तान नेशन एक ऐसी नेशन है कि क्रिकेट होता है चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की इधर से उधर हो जाए, इवन इस सिचुएशन में अगर क्रिकेट लग जाए, सो आई थिंक फॉर 2-3 गुड आवर्स इवन पीपल विल फॉरगेट दिस कोरोना वायरस, राइट? सो रीजन क्या है? क्रिकेट इज द रोमांस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन, राइट? सो इसी तरह से लाइकवाइज मेक योर फेलियर्स your romance and make peace with your failure. How you're going to do it? Don't make it personal. The first step, they are going to be there. Every successful people alive on this earth, या जो गुजर चुके हैं, या जो 1000 साल पहले, 1400 साल पहले भी ऐसे लोग आए जो किसी डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आए थे, और इवन देन वो अपना आज भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं. सन तzu, गौतम बुद्ध, our holy prophet peace be upon him, the great Alexander, you still read all those and heard all those great stories about them. रीजन क्या है? कि जितनी बड़ी सैक्रिफाइस उतना ही रहती दुनिया तक नाम. सो उनमें से किसी ने भी पर्सनल नहीं लिया इसको. इट्स वेरी नेचुरल फिनोमेना. सो डोंट टेक इट पर्सनल. टेक स्टॉक means do assessments, learn and adapt. Observe, observation and adaptability.
human being, Ashraful Makhlukat, one of the finest creation of Allah, the Creator, is human being. And the best thing about human being is he adapts by observing and doing the analysis and assessments. He adapts himself with the environment. Stop dwelling on it. कोसना अपने आप को छोड़ दें. ये हो गया, ये हो गया. Stop even discussing. You will always go into the negative zone. Don't do this to yourself. It will always harm you. Nothing else. कुछ अच्छा नहीं करेगा आपका. So stop dwelling on it. Release the need for approval of others. Don't wait for the approvals. कि आप के अंदर जो personality में एक dependent factor है, there is going to be someone. Grow up. You are now grown ups. You are adults, right? So you are now out to make things happen for yourself. Gone are the days when there was spoon feeding, when your father was there. Now you need to handle it alone. So don't wait for the approval of others. Try a new point of view. If you are stuck, if you believe, don't go with the rigid fixed approach. Try to have that diversified mindset, where flexible enough, multiple options in front of you, so that any failure which you come across do not let you fail. The other important thing is then after this, from here continuing, is the power of gratitude, thankfulness, shukr ada karna to the situation around you, and feeling best about it and feeling positive about it. If the failures are coming to you, just try to see that they are there to make your name more big. अल्लाह ने आपसे कोई बड़ा काम लेना है, right? And this is very important कि आप अपनी जिंदगी में gratitude को समझें. Few days back I was watching a movie. It's a very good movie, और उसके अंदर mainly जो उसका genre है, very good intellectual conversations drive उसमें हुई हैं पूरे इस मूवी में. और उसमें somehow one boss comes to the subordinate and asks, he's happy from the subordinate and asks him, ये बताओ यार तुम्हें क्या चाहिए? So instead of asking for money, for any other thing, the car or any other good facility, he says one thing, that I want your gratitude. Because once you win anyone's gratitude, so the car or the bonuses, those things are quite small. So always look for gratitude. What इससे होता क्या है? ये क्या improve? What it improves? Health and well-being, self confidence आ जाता है, पर्सनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं आपके, क्लैरिटी आ जाती है आपको, दैट विजन ऑफ ईगल, द क्लैरिटी व्हाट यू हैव टू डू नाउ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और जो उसके इर्द गिर्द रेजोल्यूशंस हैं वो बड़ा मजेदार हो जाता है आपके लिए, एक बड़ी फाइन इक्वेशन बिल्ड हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन के दरमियान. And you start exploring the leader within you. And this all happens because when you stay positive and you put gratitude to your thought process, six senses, and your body language in your personal side, in your professional side, when you are working with your teams, even with your boss, even with your subordinates. So it's a very 360 framework. Look for mentors. Very important. मेंटोर्स ढूंढें अपने इर्द गिर्द, बिकॉज मेंटोर्स वो लोग हैं जो आपको आपके मकाम उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जहां तक बेस्ट आप देख सकते हैं. वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपकी लाइफ में, उर्दू में कहते हैं, जुबान में कहते हैं, उस्ताद का होना, मुर्शद का होना. So you need to have that teacher with you who takes you all through those steps to your destination.
So what are the qualities of a great mentor? Especially you are in a pursuing a professional qualification, और आप एक प्रोफेशनल वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं और एक कॉर्पोरेट प्लेसेस में, फर्म्स में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि वो क्या क्वालिटीज होती हैं, कैसे एक मेंटोर को देखा जाए, और मेंटोर को तलाश करने के लिए वो कौन सी निशानियां हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए. So he challenges you. He will always love to raise your bar. If you are setting your bar here, he will try to raise your bar from this place to here. So he's always seeing the more greater, the more bigger picture in you जो आपको खुद नजर नहीं आ रही है. He is experienced. So try to take benefit from the experience. Is where you want to be. आप उसमें एस्पायर करते हैं, आप उसमें अपनी मंजिल तलाश करते हैं. सो यू वांट टू बी देयर वन डे वेयर योर मेंटोर इज, सपोर्ट्स यू, बहुत अच्छा लिसनर होता है. दैट हैज बीन द केस विद मी. मुझे अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनल प्रोफेशनल करियर के अंदर कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनके मिलने से मेरी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे लिसनर्स थे. और आहिस्ता 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 मैंने ये रियलाइज किया और मुझे खुद अपने एंड पे चीजों का एहसास होना स्टार्ट हुआ. और उन ऐसे मेंटोर्स की वजह से मेरे अंदर कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इम्प्रूवमेंट्स आई. इस इन्वेस्टेड, आपकी इन्वेस्ट करता, हमने पिछले एक सेशन में डिस्कस किया था, ऑलवेज regard those people who packs your parachute. यानी कि वो लोग जो आपकी ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं. मेंटोर जरूरी नहीं है कि आपकी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो, आपका कोई कजन हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे आगे. गाइड्स यू टुवर्ड्स द आंसर, आपको नेविगेट करता है. जैसे आप नेविगेशन डालते हैं अपने स्मार्टफोन में, आपने कहीं जाना होता है, सवाल का जवाब आपके पास कहीं अंदर होता है, लेकिन द बेस्ट क्वालिटी अबाउट द मेंटोर इज कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कोचिंग स्किल से उस डेस्टिनेशन या उस आंसर तक नेविगेट करके लेकर जाता है. प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है, आपको डीमोटिवेट नहीं करते हैं. और रिस्पेक्ट्स यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप किसी की बात तभी सुनते हैं, किसी को तभी बड़ा मानते हैं जब वो भी आपको इज्जत की निगाह से देखता है, एंड इज ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज देयर फॉर यू. These are the best and qualities of great mentor which you should keep in mind while facing your failures. Okay, so कौन है mentors? मैंने कुछ आप लोगों के लिए लिखे हैं. ACCA members, practical experience supervisors, PES members, your senior colleagues, teachers, your boss, people who you look up to, maybe within your family, any of your uncle who is very successful, any of your cousin, he or she could be anyone from the society. And when you are out to network, remember, don't come empty hand, खाली हाथ वापस ना आए कभी भी नेटवर्किंग से. हमेशा कुछ ना कुछ हासिल करके आए. और सबसे बेस्ट चीज जो आप एक नेटवर्किंग से लेकर वापस आ सकते हैं, and that is that you find mentors for you. So accept that even after all this, accept that failure is a part of the process. It's a process actually to success. So if you need to see the success process, the process is called itself a failure. Okay, if you see the picture, in picture, कोशिश ये की जा रही है कि हर आने वाली कोशिश में बेहतर किया जाए. हालांकि एक भी उसने बोर्ड पे हिट नहीं किया, लेकिन स्टिल अगर आप देखें, ही इज फेलिंग फॉरवर्ड. सो ऑलवेज ट्राई. फेल होना बुरी बात नहीं है, हमेशा आपको सिखाता है, आपको उठना सिखाता है. आप जितना जल्दी
अपनी लाइफ में गिरते हैं उतना जल्दी आप उठना सीख जाते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा फेल फॉरवर्ड हो। एक जगह से जहां से आप स्लिप हुए हैं, ऑलरेडी एक जगह से आप, जो आपको जगह स्लिपरी जगह थी, वहां से आप स्लिप हुए हैं, आप दोबारा रोज रोज उसी जगह से एक ही अंदाज में एक ही जगह पर जख्म ना खाएं। ऑलवेज ट्राई टू improve, so fail forward, that is very important. If you see the picture, मैं तो जब भी सर्फिंग के बारे में सोचता हूँ या एक साइकोलॉजिकल आता है कि मतलब कि स्विमिंग तो अगर आती भी हो, इवन देन इतनी बड़ी लेयर्स, और इवन बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट दैट व्हेन यू गो ऑन द सी शोर्स, या आप सी बीच पे जाएं या कहीं पर भी, तो इवन शुरू की लहरें जो है उनमें बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो कैसे आप अपने आप को मेन स्ट्रीम में ओशन के लेकर जाएं और वहां पर एक बड़ी सी लहर आए और उसके बीच में आप यूं सर्फ कर रहे हैं, it puts a lot of options of getting failed in this situation. So it's a challenge, but the point is, in life, see the person, see its passion, how actually he is enjoying the moment. So enjoy your challenge. The best thing is, whatsoever the task is given to you, uh, when you are an affiliate or at a basic role, basic position as a trainee, or doing an articleship, so always try it from the very first day. Put this attitude with yourself that you are going to enjoy your challenges. Another important, what happens with all of this we have discussed so far, when you actually try to face your failures in a very good competitive manner, it starts building up your character. And what are the points and what it brings? The strong character brings you humbleness, self-discipline. I'll give you an example. When I started my career, before coming to ACCA, when I was working with a surgical company, so my father gave me, when I was in university, so my father gave me a car, right? Alhamdulillah, he got a good job, so he blessed us with good facilities. But the point is, when I was in the job, so altogether, the company gave me a bike. अब बाइक पे जब मैंने एक्सपीरियंस, तो मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। दिसंबर के दिन है, विंटर्स है, और मुझे कभी कभी क्लाइंट से मिलने के लिए सुबह, तो मैं गाड़ी को स्किप कर रहा हूँ, मैं इंटेंशनली उस बाइक पर बैठ रहा हूँ और रेन जैकेट पहन रहा हूँ या विंड ब्रेकर पहन रहा हूँ, सो दैट जो मैंने सूट पहना हुआ है वो खराब ना हो। और सर्दी की सख्त सुबह में 6 बजे भी, if I have to meet any, because I told you earlier that I was in surgical company, so I used to meet a lot of surgeons and cardiologists. So when I used to be there, so मैं सुबह बारिश में भी जा रहा होता था, और अक्सर मेरे इर्द गिर्द से जब गाड़ी गुजरती थी तो मुझे एहसास होता था कि कितना फर्क पड़ता है जब आप बाइक पे जा रहे होते हैं। तो एक टाइम आया, आफ्टर व्हेन आई गॉट द बोनस एंड आई, मैंने सेल्स के टारगेट्स बड़े ओवरवेलमिंगली अचीव किए, तो हुआ ये, दे गेव मी अ 1.3 सीसी कार, but with the time it built my character. And when I used to be in my father's car, my character used to be very mediocre. I used to rush on the roads like this, or even don't used to see कि मेरे साइड से कोई एक शख्स जा रहा है जो मे भी अपनी फैमिली के साथ है, मैं जोर से गाड़ी के स्ट्रॉन्ग डिपर्स दे रहा हूँ, पीछे से हॉर्न बजा रहा हूँ, सो ऑल दैट सेंस गेट स्टार्ट मेरे साथ आना स्टार्ट होगी। तो मेरे अंदर हम्बलनेस बढ़ गई, मेरा डिसिप्लिन बढ़ गया, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई मेरी, मैंने अपने आप को अकाउंटेबल करना स्टार्ट कर दिया एज अ प्रोफेशनल, as well. I used to be every day sharply on time, meetings में code of conduct, presentation, body language, हर चीज शेप होना स्टार्ट हो गई। लेकिन उसमें जो वो एक फेज था, जो मैं बाइक मैंने चलाया कुछ ऑलमोस्ट अ ईयर, दैट वाज वेरी ग्रेट मोमेंट्स फॉर मी। बिल्कुल completely लगता था इट्स ऑल डार्क, बट एट द एंड इट वेल इन अ वे दैट कि उसने मेरे लिए ऐसे एवेन्यूज ओपन किए कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड।
So composure, आप में composure आ जाता है. So you when you actually start facing all the storms, all the rains, thundering storms, तो होता ही है कि आपकी roots strong होने start हो जाती हैं. Integrity, as a thorough professional accountant, this is the most important part of your character. Integrity. So bring in your values. This is the most important part, which is integrity. फर्दर क्या करता है, आप में आपको रिजिलियंट बना देता है. जब आप पे परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, आपको लेट्स से प्यासा रखा जाता है या आप एक टफ सिचुएशंस में रहते हैं, तो आप रिजिलियंट हो जाते हैं. व्हेन आई यूज्ड टू बी ऑन द बाइक, सो धूप पड़ रही है स्ट्रेट, अब फील हो रहा है, पसीना आ रहा है, सारा कुछ है, लेकिन जब मेरा वो एक प्रोसेस से फेज से मैं गुजर गया, तो वो मेरी पर्सनालिटी का वो रिजिलियंस, वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई. सो आई वाज नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस एवरी टाइम. आई वाज रिजिलियंट, आई वाज स्ट्रांग इनफ. सो अगर मुझे कोई बड़ा टास्क लेना था, तो मुझे था कि मैं लाइफ में कभी कम कमा लूंगा या कम अर्न कर लूंगा, लेकिन मैं somehow हारूंगा नहीं. So this is what resilience brings into you. The important thing which we talked about, the resilience की अगर हम further बात करें, which brings its vision, composure, collaboration, reasoning, your health factor, सब चीजें आपकी बड़ी strong होती हैं. Your vision gets very strong. Your collaboration skills gets very strong. You become a very strong team player. आप social context में, conversations में, negotiations में, MOUs में, presentations में, it all gets better for you. आपकी perceptions जो हैं, वो perception challenge जो create होते हैं, आप उनको बड़ा positively manage करना start कर देते हैं. Composure in your body language, emotional control improve हो जाता है आपका, आप calm रहते हैं difficult situations के अंदर. आपकी हेल्थ साइड, आप साइकोलॉजिकली जब स्ट्रांग होते हैं, आप जब कंपोज्ड होते हैं, आपका हेल्थ फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है. आप नींद पूरी करते हैं, आपकी स्लीपलेस नाइट्स खत्म हो जाती हैं. एक्सरसाइज खुद ब खुद अपनी स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है आपकी रूटीन के अंदर. फिर टेनेसिटी, परसिस्टेंस, रियलिस्टिक ऑप्टिज्म, बाउंस बैक, इन तमाम चीजों को आप फर्मली होल्ड करते हैं, जिसमें परसिस्टेंस है, ऑप्टिमिज्म है, और आप बाउंस बैक करते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जब कभी भी आपको पुश बैक किया जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि वी एक्चुअली डोंट स्पीक अप. व्हेन वी आर इवन आस्क्ड टू स्पीक अप, वी डोंट स्पीक अप. और ये बहुत ज्यादा होता है कि 4 लोग 6 लोग मीटिंग में हैं, योर सीईओ इज देयर, योर बॉस इज देयर, योर टीम लीडर इज देयर, एंड ही इज आस्किंग फॉर योर ओपिनियन. हमने बात की जैसे क्लासरूम में, वी डोंट we don't bring up the questions, so we don't speak up our mind, because you are hired keeping in view your complete personality. So that talks not only about your qualification, but the uniqueness of your mind, your thought process, and personality as well, right? So whenever you are facing your failures, it's important that you speak up your mind. That is very important. Don't put um, finger on your lips, and start speaking about what you have to say in the best articulation you can. Okay, if you see the picture, and you will get the idea that emotional quotient कितना important है इस सारे element के अंदर. You need to be emotionally strong. You need to control your emotions in a very good way. So emotional quotient आजकल की jobs के अंदर, especially performance reviews के अंदर, जब आपने ग्रोथ लेनी है, खास तौर पे आपने जब मिडिल मैनेजमेंट से सीनियर मैनेजमेंट की तरफ मूव करना है, तो उसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन, आपके सारे टेक्निकल स्किल्स एक तरफ रह जाते हैं, और ये इमोशनल क्वोशंट अपना स्ट्रांगली एक स्ट्रांग एक वेटेज रखता है और कंसिडरेशन में रखा जाता है जब कभी भी प्रमोशन की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, एंड इवन हायरिंग के वक्त भी इमोशनल क्वोशंट को लाजमी ज़हन में रखा जाता है.
जिन लोगों के इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, दे आर ग्रेट टीम प्लेयर्स, दे excellently deal with the change, they can handle the tough conversations because वो emotionally deviate नहीं हो जाते हैं, वो emotionally कहीं और नहीं निकल जाते हैं, ठीक है, लूज नहीं कर जाते हैं, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीपल स्किल है जो आप में क्रिएट होता है इससे, पीपल मैनेजमेंट। हर बंदे की अपनी एक पर्सनालिटी है, डिफरेंट इमोशनल स्टेटस हैं लोगों के, कैपेसिटीज हैं डिफरेंट इमोशनल, कोई ज्यादा एग्रेसिव मिलेगा, कोई कम एग्रेसिव मिलेगा, कोई आपको डल मिलेगा, लेस एनर्जेटिक होगा, कोई किसी की एनर्जी ज्यादा होगी। सो आप उन सबको चैनलाइज करते हैं विद द रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशंस। की फीचर, इट्स अ की फीचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। एक लीडर की सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्वोशंट। इफ यू सी द पिक्चर, पिक्चर के अंदर अगर आप देखें, द लेडी इज एक्चुअली ट्राइंग टू क्लाइंब अप द ऑब्स्टेकल, और ऑब्स्टेकल की दूसरी साइड पर एक बहुत खूबसूरत सा लैंडस्केप है जो इंतजार कर रहा है। So it's about actually the mindset. So you start seeing obstacles differently. Start seeing your failures, your obstacles as different, just as you see the opportunities. तो होगा क्या when you will start seeing them differently? So there will be opportunities in front of you. जैसे हमने बात की थी कि chaos, when we talk about the chaos, difficult situations, chaos के अंदर ये opportunities होती हैं। अभी even ये जो current situation आई है, ये अपने साथ बहुत सारी opportunities भी लेकर आई है। So start seeing your obstacles differently. Okay, this is very important. He is now, the person is sitting in the office and he is now thinking कि मुझे अपने career के अंदर कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, and he is planning actually. So plan for your desired professional situation for next year. Plan it कि प्रोफेशनली आप अपने आप को कहां प्लेस करते हैं आने वाले साल में। when you will plan, then only you will start working on that plan. So plan it, your professional situation next year kahan hona chahiye, if you are here where you want to be the next year professionally, kahan park karte hain apne aap ko, and again then in 5 years and then in 10 years, so make it bit long term as well. So your 10 years, so 5 years, so you can plan it accordingly. See the weak parts, the weak connecting parts within your skill sets, within your thought process, personality, overall जितने ingredients हमने discuss किए हैं, start recognizing your weaknesses. If you will not recognize your weaknesses, failures का एक जो मेन इंग्रेडिएंट है, फेलियर्स हमेशा आपकी वीकनेसेस पर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। हम अक्सर इंटरव्यूज में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे हमारी स्ट्रेंथ्स पर बात की जाए, और इंटरव्यू लेने वाला फौरन हमारा रेज्यूमे देखकर हमारे स्ट्रेंथ्स समझ जाता है, और वो हमसे इंटरव्यू में कोशिश ये करता है कि वो हमारी स्ट्रेंथ्स की बात ना करे, बिकॉज वो समझ गया आपको कि यू आर गुड एट इट। सो अब वो ये समझना चाह रहा है आप वीक कहां पर हैं, क्यों हैं और कितने हैं, और इसकी वजह से हाउ मच दे कैन लूज, या इसकी वजह से कितनी चीजें लेस इम्पैक्ट के साथ होंगी। So this is very important that you start recognizing your weaknesses, and then when you recognize, only then you improve. If you will not recognize, you will never improve. Very important, and that is you should learn to fight back. Usually we all, हम हार जाते हैं दिल, हम बैठ जाते हैं, ओके सिचुएशन आ गई अब क्या करें। ये जो अपने अंदर विल पावर है ना, कि आपने अब कैसे लड़ना है, हाउ यू नीड टू लर्न इट, और ये विल पावर होगी नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। सो हैव दैट विल पावर एंड लर्न एक्चुअली टू फाइट बैक, पुश बैक द नेगेटिव सिचुएशंस अवे फ्रॉम योर लाइफ। स्टेप आउट, जो आपने अपना कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है जिससे आप बाहर नहीं निकलते हैं और अपने फेलियर्स को फेस नहीं करते,
उसमें से आपको बाहर निकलना होगा। आपको अपनी एक जो 9 to 5 एक रूटीन है, आप एक वक्त पे उठते हैं, सो जाते हैं, तो बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। आपको अपने आप को टफ सिचुएशंस में लेकर जाना होगा। अगर आप बड़े से बड़े लोगों की लाइफ देखें, उन्होंने हमेशा अपने आप को टफ सिचुएशंस में डाला है। अर्ली राइजर्स होते हैं। अब आप देखें कितने लोग अर्ली राइजर्स होते हैं, कोई अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं। हमेशा हर एक का दिल होता है कि वो लेट लेट सोए इवन, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं रेगुलरली। इवन इफ आई टॉक अबाउट माय फादर यूज्ड टू बी अ बैंकर and a proper shave every day, properly used to get up sharp at 6 every morning. Every morning he was all ready by 6 a.m. And you know, when you go out and see, 80-70% of the world is sleeping at that time. So you need to step out of your comfort zones. इकबाल क्या कहते हैं जी शाहीन के बारे में? तुंदिए तुंदिए बादी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर इक्वेशन। इसको आप बेशक अपने कहीं पे सामने, मैंने अक्सर अपने कॉलीग्स को, कुछ दोस्तों को देखा है कि उन्होंने अपने वर्क स्टेशन के ऊपर अपने विजन बोर्ड्स के साथ साथ ये पिक्चर भी लगाई होती है, और ये बड़ा मोटिवेट करती है आपको पूरा दिन। जब आप इसको देखते हैं, आपके यहाँ पर रिकॉल होती रहती है, दैट इज दैट पहले मे बी आई वुडंट डू इट, आई कांट डू इट, आई फिर आहिस्ता आहिस्ता यू पुश योर सेल्फ back on your toes and you want to do it, then the second question is, how do I do it? Then okay, no, I'll try to do it. Then you can do it, and you will do it, and that's how you reach to the success part. Okay, चीजें खुद से नहीं हो जाती हैं, ठीक है? What you need to do, it starts for those who take action. So action बहुत important है. So getting, जैसे हमने इस last picture में discuss किया, so get on your toes, get ready, get set, go. So that sort of energy you need. It's just like जैसे आप start line पे खड़े हुए हैं, right? And you are seeing all, वो पूरी journey अभी सामने पड़ी हुई है, 100 मीटर की रेस भागना है, destination point बहुत दूर है. So you gather up all your self energy, put yourself all together, and you put that into action. So you put yourself together like this in front of all the storms, the rain, the thunder, the panic situations, the pressure, the obstacles, the challenges. You put yourself all together like this, and you face your failures. Because when you face your failures, then there is the essence of success. That is all from my end today, Ji. Thanks for attending. Now we are open for Q&A session. Ji, Shahid or Rashid. Hi, Asad. Thank you very much for such an insightful presentation. Very inspiring. A lot of eye openers for everyone, I'm sure. So guys, if you have any questions, you can please send us those questions now and we'll come to your questions. Okay, so all right, sure. So some people are requesting for your contact details, so you can probably share how they can connect with you on social media, or is there any email address that you would like to share? Sure. Bilawal has asked for the recording. Yes, all these sessions are being recorded, and we will share the recordings as soon as we are done with all the sessions. जो शुरू के 4 सेशंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग वी हैव ऑलरेडी ईमेल्ड आज सुबह, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं. Okay, so we have a question from Tehreem Ishaq. How to overcome from
mental torture, stress of colleagues, behaviors in a working environment? Is this also being considered to be a part of failure in success? और साथ ही उनका एक और secondary question है, please explain word gratitude. I have listened it so many times but cannot understand it with clarity. Gratitude जब हम बात करते हैं कि a person should have gratitude, तो उससे आपकी क्या मुराद होती है? If you can please answer these two questions. राइट आई थिंक जो पहला आपका सवाल है उसके ऊपर बहुत अच्छा सवाल है सबसे पहले, और मैं हमेशा अच्छे सवालों को काफी अप्रिशिएट करता हूँ। और हमने एक सेशन में बात की थी विजन की, कि जब आपको पता होता है कि आपने कहाँ पर पहुंचना है, कहाँ पर, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, और आप उसके लिहाज से अपनी स्ट्रैटेजी या रूट डिसाइड करते हैं कि आपने वहां तक कैसे जाना है, राइट? फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू गो टू लाहौर, so you decide either you want to go through GT road or motorway, and when you have decided that you'll go through motorway, so you also decide that in how much time you want to reach there. There will be number of situations in between where you will maybe feel hungry or you want to stop, but that you don't have that much time with you, right? So maybe आपको गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी है जिसके हिसाब से आपने जो कैलकुलेट टाइम किया हुआ है, यू वांट टू रीच टू योर डेस्टिनेशन। सो आप अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से, अपने गोल्स और टास्क्स के हिसाब से, अपने वर्क प्लेस एनवायरनमेंट के अंदर जो आपका एम होता है, विजन होता है, उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, दैट व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो उससे होता क्या है कि आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली नॉइस, डिस्ट्रैक्शन, एंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प मी टू रीच देयर, राइट? सो विद इन आपके इर्द गिर्द बहुत सारी आवाजें होती हैं, उसमें से आपने ये समझना है कि क्या सिर्फ शोर है, सिर्फ शोर है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, मुझे अपने टारगेट तक पहुंचने में डिस्ट्रैक्ट करेंगी। सो यू स्टे फोकस्ड विद योर गोल वेयर यू वांट टू रीच, and you put your always keep that in mind with clarity, and then actually you start. And the other point is ke you also need to keep yourself open ke what's actually helping you, agar if someone has criticized you। so हमने बात की थी कि एक तो अनफेयर क्रिटिसिज्म है, उसको तो आपको बिल्कुल एक पोल्यूशन की तरह लेना चाहिए, नॉइस की तरह, डिस्ट्रैक्शन की तरह। लेकिन कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म होता है जो कि हम जिसको हमारी ईगो आगे आ जाती है, और वो हमारी ईगो हमें ग्रो नहीं करने देती है, राइट? सो हमें बिल्कुल अपने आप को, आवर फीट शुड बी टचिंग ग्राउंड, शुड, सो दैट हमें ग्राउंड जीरो की सिचुएशन का हमेशा पता हो कि एक्चुअली हु यू आर एज अ रिसोर्स इन रियल, व्हाट आर योर रियलिस्टिकली आपके स्किल्स कहाँ स्टैंड करते हैं। सो अगर किसी ने कोई क्रिटिसाइज किया है, मे बी सो दैट कैन बी अ गुड क्रिटिसाइज एज वेल। So good criticism helps you in growth. So you keep your eyes and ears always open to your surroundings, but with the very smart sense कि what out इसमें से आपने filter कैसे करना है, कि आपने इसमें से filters में से noise और distractions को, कि जो चीजें आपको आपकी allocated या destination जहां पहुंचना चाहते हैं उसमें आपको slow pace कर रहा है, तो वो सारा noise और distraction है, you need to manage them, you can't move away from them। हमने इसमें बात की कि you have to face them, so you put in the proper negotiations, communicate करें, manage करें, गुफ्तगू करें, and fight in a very nicest way। you don't put friction to any end, even to your distractions or the noise part, so you handle them very calmly। जैसे मैंने एक बात की थी ना, cherish your failures। इवन ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं या जो पॉलिटिकल लेग पुलिंग है, उनको भी आपने बड़े अच्छे स्मार्टली अंदाज में, ऑप्टिमिस्टिकली चेरिश करते हुए उन सबको आपने मैनेज करना है, सो दैट दे डोंट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम वेयर यू वांट टू बी। एंड द ग्रेटिट्यूड इज अगेन द सेम थिंग, जब आप चेरिश कर रहे होते हैं, when you are actually cherishing, when you are actually whole heartedly अपनी पूरी warmth के साथ आप जो है सामने वाली चैलेंज सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें आपके अंदर थैंकफुलनेस आती है
Okay, whatever I am blessed with is actually for the good reason there. So that is all what is the gratitude, the good part, the thankfulness side of someone. Shukr wali side, the positive part of it. So the gratitude part, I think if I explain it further, I would like you to go on to that slide particular. Okay. See, जब आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, इवन नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आप उसमें से कुछ एक पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नहीं, ये जो सिचुएशन मेरे पर आई है, ये मुझे ये भी कुछ ना कुछ अच्छा सिखा कर जाएगी और मैं इसका भी शुक्र अदा करता हूँ। उसमें भी आप शुक्र अदा कर रहे हैं। जब आप उस टफ से टफ सिचुएशन में भी शुक्र अदा करते हैं तो आपको जो है पॉजिटिव्स नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वेलबींग नजर आना स्टार्ट हो जाती है, आपको अपने ऊपर एतमाद बढ़ जाता है कि इवन आप इस टफ सिचुएशन में से भी निकल सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर भी जब आप हर सिचुएशन में, स्पेशली द मैरिड वंस, आई एम मैरिड वन और द बेस्ट एग्जांपल, so you start seeing even हर सिचुएशन के अंदर, even with the conversation with your parents or with your friends, अगर even they are rude to you, or even you even then try to see कि maybe why he is rude, maybe he is upset because of something, right? But he is your friend and he is there. So you try to bring out the positive soul, the spiritual positive side out from everything, makes up the gratitude. Ji, thank you. Thank you very much, Asad. We have more questions, but I think we can answer those questions in our next session as we are running out of time. So thank you very Sure. much, everyone, for attending today's session. And we will be back with another session, which is on Tuesday, right, Asad? The next session Ji, is ji, on ji. 19th of May, which is a Tuesday. So please Rashid, join and us again. how This to will be actually the finale, right? share contact details? Yeah, so what we'll do is we will Asad Malik is on LinkedIn, so anybody can search Asad Mahmood Malik and they'll be able to contact you It's directly. Asad Malik. It's Asad Malik It's here just on Asad the Malik LinkedIn. on Ji, LinkedIn. If right. you type keywords Asad Malik ACCA, then you'll definitely be able to find his profile, and there you can connect with him and ask all your questions that you may have in the future. So thank you very much, Asad, for your time, and all our Thank you, attendees Rashid. for listening to the entire session very attentively. Thank you very much, and I'm sure कि इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा, and we'll be back on Tuesday. So आपके अगर कोई questions रह गए, so we'll try कि हम Tuesday के session को जरा extend कर लेंगे, 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटे तक ले जाएंगे. So we have all your questions that are still unanswered. We'll try to answer those questions. Even if you can send me your questions in the inbox in the LinkedIn as well, या तो so आप even LinkedIn I पे can respond there. मैसेज भी कर सकते हैं इन एडवांस, फिर असद जो है विल मेक श्योर कि वो आंसर कर देंगे आपके क्वेश्चंस को. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. होप यू आर हैविंग ग्रेट रमजान. सो एंजॉय रेस्ट ऑफ द डे. विल सी यू ऑन ट्यूसडे. अल्लाह Thank you very हाफिज. much, Rashid. Thank you for all great contribution you put थैंक in यू. this Sure. series. Bye. Great. Thank you.